Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now, class 9, chapter number 2. Last exercise, exercise number 2.5. Before it, we have to already discuss about the exercise 2.12, exercise 2.4. Now today we discuss about the identities for the algebraic identities. Okay. Now first identity is, you know already about a plus b whole square. A plus b whole square, you write in as a formula a square plus 2ab plus b square. Means first term, the decrease in powers, and second term, increase as a power. First as a b power 0, in second b power 1, and third b power 2. And first a is the a square, then decrease a1 and then a power 0. Similarly, suppose here sign is the negative, minus. So you take this sign is the minus. A square minus 2ab plus b square. And also we use a square minus b square. It is the formula. What is the factor of a square minus b square? We can write a plus b into a minus b. For example, suppose first we write 2x plus 3y whole square. What is the answer? 2x plus 3y whole square. So use the first formula a plus b whole square. So 2x whole square plus 2 into ab. What is a? A is the 2x and b is 3y, and plus b square. What is b? Here value of b is 3y whole square. So final answer is 2 square is 4, x square plus 2 into 2 4 and 4 into 3 12. Finally 12x into y xy and plus 3 square is 9 and then y square. So final answer is 4x square plus 12xy plus 9y square. So using this formula you can write the direct answer as using the a plus b whole square. Similarly, what is the formula for a square minus b square? Suppose what is the factor of what is the a square minus b square in the form of, suppose we write 9x square and minus, now here write 4y square. So what is the factor of this algebraic expression? Because these two are the perfect square number. 9x square is the perfect square, 4y square is also perfect square. Now first term is the square of 3x and second is the square of 2y. So you can write, you take this number as a, this number as a b. So you can write a square minus b square. Answer is a plus b and a minus b. So finally, what is the a? 3x plus 2y. Sorry, you take the here 2y. And now next 3x minus 2y. So answer is 3x plus 2y and 3x minus 2y. It is the factor of 9x square minus 4y square. Okay, student. Now it is the first identity, it is the second identity, now third identity. Now we write the third identity. Identity is the, we take the x plus a and x plus b. Here the first term is the same, but second terms are different. So what is the answer of product of x plus a and x plus b?
So you can write is equal to x square, x into x, x square, and you write a plus b into x and plus b square. So it is the formula for x square plus ab, a plus bx and plus ab. Sorry, not b square, here write the ab. Because a into b is the ab. Next write there for the third term a plus b plus c whole square. What is the a plus b plus c whole square? First write the square of all three terms. A square plus b square plus c square. याद करने के हिसाब से आप इजीली you can write a square plus b square plus c square. Next plus 2ab, जैसे कि अपन ने यहाँ पे 2ab लिखा. Similarly plus 2bc and then plus 2ca. क्या कर रहे हैं? a to b, b to c and c to a. It is the final answer. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc and plus 2ca. It is the answer of a plus b plus c whole square. Now next identity is there for the cube. Means this time we write the a plus b whole cube. अभी तक हम होल स्क्वायर तक करते हुए आ रहे हैं, अब हम क्यूब तक. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस माइनस बी होल क्यूब. सो a प्लस b होल क्यूब इज द, यू कैन राइट फर्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब. याद करने के अकॉर्डिंग सभी साइन मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3 पावर 3 है तो आप लिखिए 3ab और ब्रैकेट में आप a प्लस बी. उसके बाद में आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बाद में आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस दिस इंटू दिस 3a स्क्वायर b एंड दिस इंटू दिस प्लस 3ab स्क्वायर. इस फॉर्म में आप लर्न कर सकते हैं इसको, और इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना. ये तो याद करने के अकॉर्डिंग, और ये आपको फाइनली आंसर जब इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे वो इजी रहेगा. याद करने के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म में इजी रहेगा. अगर मैं नेगेटिव लेता हूं फॉर एग्जांपल a माइनस बी होल क्यूब, इस बार साइन नेगेटिव है तो यू कैन राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब, बिकॉज साइन पावर ऑफ 3 पावर ऑफ माइनस, अगर माइनस की पावर 3 है तो आंसर पावर वापस सॉरी अगर साइन की पावर 3 है तो वापस साइन 3 ही आएगा. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, हर बार मैं माइनस ही ले रहा हूँ एंड ब्रैकेट a माइनस बी. देख लीजिए आंसर वही है, a क्यूब बी क्यूब 3ab ab. यहाँ पर भी a क्यूब बी क्यूब 3ab ab. तो साइन माइनस माइनस माइनस, ये तो आपको याद करने के अकॉर्डिंग. और आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस दिस इंटू दिस 3a स्क्वायर b एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab स्क्वायर. यहाँ पर इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, यानी कि एक टर्म पॉजिटिव जा रही है क्योंकि साइन ऑफ b जो है वो यहाँ पर माइनस है, और इसलिए b की पावर यहाँ स्क्वायर है, और पावर स्क्वायर होगी तो साइन की पावर अगर माइनस स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन अगर आप याद करते हैं तो आप इस फॉर्म में याद करने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको नेगेटिव लिखना, माइनस माइनस माइनस. यहाँ पर भी प्लस प्लस प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. बाद में आप इस ब्रैकेट को ओपन करें तो आपको ऑटोमेटिकली दिस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर पॉजिटिव बन जाएगा. क्लियर? तो ये तो हो गया आपका क्यूब के लिए. चलिए एक बार फिर से आफ्टर क्यूब अब अपन बात करते हैं फोर फैक्टर्स. फैक्टर्स की अपन बात करते हैं लास्ट 7 आइडेंटिटी इज a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc. सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
and then minus 3ABC. इस बार मैं करने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन. मीन्स what is the factor of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc? Means these three terms are perfect cube and minus 3abc. So what is the factor? अगर इस टर्म में कभी भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलती है तो आप इसके फैक्टर्स क्या लिखेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b प्लस c. ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. आपकी बुक में एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने ए बी सी की फॉर्म में लिखा है. पर कुछ भी नहीं है, बात एक ही है. यहाँ पर मैं ए बी सी की फॉर्म में याद करवा रहा हूँ क्योंकि आप अभी तक 8th क्लास में भी आप ए बी सी की फॉर्म में याद करते आ रहे हैं. अब यहाँ पर आपको जो लिखना है a प्लस बी प्लस सी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस ए बी, देन माइनस बी सी, एंड देन माइनस सी बी. ये आपको आंसर लिखना है. इट इज द फाइनल फैक्टर of this type of the algebraic expression. अगर मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखता हूं इसी को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो क्या लिखना है? x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स. ये यहाँ पर हमने 7 आइडेंटिटीज हमने लिखी है. इन 7 आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे. इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इन 7 आइडेंटिटीज के बेसिस पर. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस में आपको 2.5 एक्सरसाइज के से लेकर मैं आपको इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए मैं आपको यूज़ करके मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ. इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. होल स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए अगर मैं एक x प्लस 4 एंड x प्लस 10, x प्लस 4 एंड x प्लस 10 अगर मैं चाहूँ इसको सॉल्व करना, वैसे तो देखो एक सिंपली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें से आप देखेंगे ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी नंबर 3 x प्लस a एंड x प्लस b. उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में लिखूँगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस a प्लस b मीन्स 4 प्लस 10 and into x, and then plus next a into b. A into b means 4 into 10. What is the answer? X square plus 10 plus 4 is 14x and plus this into this is the 14. It is the answer. ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 4y स्क्वायर. मैं आपकी बुक में से ले रहा हूँ. 4y स्क्वायर एंड देन माइनस 4y एंड प्लस 1. ये सिंपल आपको फैक्टर्स करना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है. सो इट इज द a माइनस b होल स्क्वायर. यू कैन राइट दिस इज 2y होल स्क्वायर एंड देन 2 into 2y into 1. It is the a, it is the b, it is the 2 and plus it is the 1 whole square. So it is the a and it is the b और साइन यहाँ पे माइनस है, तो आपको क्या लिखना है? इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज a b? a is the 2y and minus and y is the b is the 1. So 2y minus 1 whole square. 2y minus 1 into 2y minus 1. It is the factor of given 4y square minus 4y plus minus plus 1. ये तो बात हो गई फैक्टर्स की और ये बात हो गई प्रोडक्ट्स की. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अपन साथ साथ में आप नोट करते हुए चलें. नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टराइज
One is the 4x square plus 9y square plus 16z whole square and plus 12xy and minus 24yz and minus 16xz. जैसे ही ये देखते हैं अगर आप, तो देखते ही आपको ये तो पता चल ही जाता है कि ये आइडेंटिटीज कौन सी यूज कर रहे हैं यहाँ पे. फैक्टराइज लास्ट हम एक आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं, कहाँ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. ये आपको यूज करना है. कभी ये अगर ये गिवन हो तो आपको ये आंसर लिखना है, कभी अगर आपको ये गिवन हो तो आपको ये आंसर लिखना है. दिस टाइम राइट द आंसर ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बिकॉज दे आर फर्स्ट थ्री टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर. देखते हैं ये किसके स्क्वायर्स हैं. यहाँ पे अभी साइन हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं. इट इज द स्क्वायर ऑफ 2x. यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दो. फर्स्ट टर्म यू टेक ऑलवेज पॉजिटिव. Now second term, it is the square of 3y. Third term, it is the square of 4z. Next 12. अब ये a है आपके लिए, and it is the b, and it is the c. अब आपको करना क्या है? क्या वाकई में ये इस फॉर्म में है या नहीं? उसके लिए मैं आपको बता दूं. आपको क्या लिखना है? आपको यहां पे लिखना है प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू दिस वन. अब ये 2a, व्हाट इज a? a इज द 2x into b, व्हाट इज द b? b इज द 3y. क्या इन दोनों तीनों का प्रोडक्ट 24 आ रहा है? 2 into 2, 4, 4 into 3, 12, तो 12xy, बिल्कुल 12 आ रहा है, और x into y 12xy, और पॉजिटिव भी मिल रहा है, तो बिल्कुल ये आपको मिल गया. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दैट मीन्स आपको ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों आपको पॉजिटिव आप रख सकते हैं. नेक्स्ट प्लस 2bc, b आपके पास में ऑलरेडी है 3y and c is the 4z. तीनों को प्रोडक्ट करो. 3 into 2 6, 6 into 4, 6 into 4 is the 24. इस बार 24 और ये yz मिल रहा है, लेकिन साइन नेगेटिव है. कोई बात नहीं, साइन अगर नेगेटिव है तो एक काम करते हैं, अपन इस 4z को माइनस कर देते हैं. तो माइनस प्लस इज द माइनस. अगर आपने 4z को माइनस किया तो यहाँ पर c की वैल्यू में भी यहाँ पे माइनस कर दीजिए. बिकॉज स्क्वायर वापस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 4 4 जा 16. तो साइन के लिए मैं अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला एक ही याद करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लस 2 into b ca, इस बार c इस बार डिसाइड हो गया, माइनस 4j and into a is the 2x. इनको मल्टीप्लाई करो. साइन प्लस माइनस माइनस, तो क्या यहाँ पे माइनस आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे माइनस आ रहा है. 4 into 2 8 and 8 into 2 16, इस बार 16 और zx, it is the zx. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो कंप्लीटली ये स्क्वायर किसका बन गया? a plus b plus c whole square. But what is a? a is the 2x and b is 3y and c is the minus 4j whole square. So this time what is the, this is the whole square is the 2x plus 3y minus 4j. तो यहाँ पर कितनी फॉर्म्स बनती है ये देखो आप. a plus b plus c whole square. This sometimes a minus b plus c whole square. Sometimes a minus b, sorry, a plus b minus c whole square. Sometimes a minus b minus c whole square.
एंड समटाइम्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। पर मैंने आपको कहा ना, फर्स्ट टर्म ऑलवेज यू टेक द पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बी और सी को साथ चलिए, बी और सी के साथ चलिए, बी और सी के साथ में आप नेगेटिव साइन ले लीजिए। ए को हमेशा पॉजिटिव रखो, फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव रखनी है आपको, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे साइन इनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। इस बार स्क्वायर की टर्म ओनली लास्ट टर्म माइनस सी के साथ में हमने लिया है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। और ये अगर यहाँ माइनस पुट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। So you take the value, we find out the values of a, b, c, and then finally write the formula in the form of a plus b plus c whole square. Okay? It is the, ये हमने find out कर लिया। Next question, और एक अपन थोड़ा सा different questions हम find out करते हैं। इसी में हमने एक factors हमने find out किया था क्यूब के लिए। I think क्यूब का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया शायद, चलिए कोई बात नहीं। एक फॉर्मूला रह जाता है और वो फॉर्मूला अपन चलो बाद में डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला हमने जो लिखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यस ये रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे, x प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में हमने कहा था आपको, इसी में a प्लस बी प्लस सी मीन्स x प्लस, ये तो हमने लिख ही दिया, और देन एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब इसमें एक स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पेशल केसेस में एक चीज ध्यान रखनी है, इफ सपोज ये जो ब्रैकेट है x प्लस वाई प्लस जेड, समटाइम्स सम ऑफ दिस थ्री नंबर इज इक्वल टू 0, अगर इनका सम 0 हो जाता है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, जरा सोचो इनका सम 0 है तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, और 0 के साथ में ये ब्रैकेट चाहे कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 ही मिलेगा, मीन्स यहाँ पे वापस से इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करता हूँ वापस से, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको मिलेगा इज इक्वल टू 3xyz। तो क्या देखा हमने, क्यूब ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ दिस थ्री नंबर इज इक्वल टू 3xyz, लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा व्हेन सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 0। उस कंडीशन में हम इन थ्री परफेक्ट क्यूब नंबर्स का सम हम आंसर फैक्टर्स में लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, तो चलिए एक सम अपन डिस्कस करते हैं इसी के बेसिस पे अगर अपन एक सम लेते हैं, तो मैं एक सम लेके चलता हूँ आप भी की बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल बुक में शायद 1 2 3 4 which is the cube, factorize the following, these three numbers are given, factorize the following cube and then it is the factorize this number and then
Yes, without actually calculating the cubes of find the value of each the number, आपको फाइंड करना है -12 होल क्यूब एंड +7 होल क्यूब एंड +5 होल क्यूब। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदाउट एक्चुअल क्यूब ऑफ दिस थ्री नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थ्री नंबर। आपको इनका क्यूब फाइंड नहीं करना है और बिना क्यूब फाइंड करे हमें इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर सपोज वी टेक दिस नंबर इज x एंड वी टेक दिस नंबर इज द y एंड वी टेक दिस नंबर इज द z, ये क्या बन जाता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, मीन्स ये नंबर बन गया आपका दिस। नाउ फाइंड आउट first x plus y plus z. So what is x? X is the -12. What is y? Y is the 7. And what is z? Z is the 5. -12 and 7 plus 5 is the 12 is equal to 0. Means हमने क्या find out किया? x plus y plus z equal to 0. इनका सम 0 है। अगर इनका सम 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए था? मैंने कहा था इनका सम अगर 0 है तो इसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो therefore answer is 3xyz। यही फैक्टर्स होंगे। मीन्स 3 into x, what is x? X is the -12. What is y? Y is the 7 and it is the 5. इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 7 into 3 21 and 21 into 5, इनको मल्टीप्लाई -12 into 5 into 1 5 and 5 into 2 10. Finally minus 12 into 5 60 and 12 into 1 12. So minus 1260 is the answer. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फाइनली इनको परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट किया नहीं और बिना परफेक्ट क्यूब फाइंड किए आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये उस कंडीशंस में व्हेन सम ऑफ दिस थ्री नंबर इज मस्ट बी इक्वल टू 0, और इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये देखा जाए तो अगर आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट है और इस एक्सरसाइज को आप कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स अगर होते हैं इसमें तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक आइडेंटिटीज जो रह जाती है, एक बार मैं आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जो क्यूब के साथ में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फर्स्ट आइडेंटिटी इज द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्वेश्चंस हैं और इसमें प्रूव करना है वेरीफाई एक्स प्लस वाई एंड देन एक्स माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। और सेकेंड इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है, इनको वेरीफाई करना है। अगर इनको वेरीफाई करना है तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं। सपोज वी टेक द राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई करना है। इसको लेके चलने की बजाय मैं ये ले रहा हूं, सिंपली आपको सॉल्व करना है एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट यू टेक द फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई टू द ईच नंबर। दिस इनटू दिस एक्स क्यूब, this into this minus x square y and this into this plus xy square, y into this plus yx square, this into this minus xy square and this into this y cube plus y cube। पहले मैंने लिया x को इसके साथ में, x को इसके साथ में और x को इसके साथ में, so then 1 2 3। next y x square y
को मैं इसके साथ लेता हूँ तो एक्स वाई स्क्वायर और वाई को इसके साथ लेता हूँ वाई क्यूब। तो फाइनली एक्स स्क्वायर वाई माइनस एन एक्स स्क्वायर वाई प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एंड एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल। सो फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपको प्रूव करना था, देयरफॉर इट इज द LHS एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इट इज द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इनको आप याद भी कर सकते हैं, ये एक आइडेंटिटीज है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अभी आपके बुक में ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, इसको लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट, आज मैं इस क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ, इसको जरूर नोट कर रहे हैं और लास्ट एक्सरसाइज 2.5 को जरूर डिस्कस करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ थैंक यू एंड गुड।